Good morning, class 6. Welcome back to your biology classroom once again. Today I will discuss the last portion of this chapter, types of germination. So look at your book. There are two main types of germination, apigeal germination and hypogeal germination. So germination process is two types, either is apigeal germination or hypogeal germination. Apigeal germination. In apigeal germination, the cotyledons are pushed above the soil. मतलब इस germination में क्या होता है, cotyledons का नॉर्मली पुशअप करके उसको मिट्टी के ऊपर बाहर ढकेल देता है. The cotyledons become green and form the first leaves. So in this type of germination, cotyledons first leaves form करता है. This type of germination is seen in many dicot seeds such as bean, sunflower, cotton and castors. So student, be careful about the example. Which kind of seeds? Just follow the apigeal germination. So in this type of germination, cotyledons मिट्टी के ऊपर आ रहा है और fast leaves form कर रहा है. This germination process is also known as apigeal germination. सिर्फ यही बात याद रखना, cotyledon मिट्टी के ऊपर बाहर आके fast leaves form कर रहा है. This type of germination is also known as apigeal. Next, germination in a bean seed. The seed absorbed water and swell up. Water absorb करने के बाद normally cotyledons जो है फूल जाता है. The seed coat ruptures and radical grows downwards. So normally seed coat burst होने के बाद radical मिट्टी के अंदर मतलब नीचे की तरफ अंदर घुस जाता है. The radical forms the root system. The hypocotyle elongates and pushes the cotyledons above the soil. नॉर्मली सीड के अंदर जो हाइपोकोटाइल होता है, ये हाइपोकोटाइल खुद को बढ़ाने के बाद कॉटिलेडन्स को मिट्टी के ऊपर ढकेल दे रहा है और कॉटिलेडन्स मिट्टी के ऊपर आने के बाद फास्ट ग्रीन एंड नॉर्मली कॉटिलेडन्स ग्रीन लीव्स फॉर्म कर रहा है. द कॉटिलेडन्स बिकम ग्रीन एंड अ फंक्शन एज द फास्ट लीव्स. सो हियर इज द मेन पॉइंट इज हियर, कॉटिलेडन्स मिट्टी के ऊपर आने के बाद लीव्स फॉर्म कर रहा है, मतलब खुद को एज अ लीव ट्रीट कर रहा है. The epicotyle emerges from the cotyledons. The young leaves unfold at the tip of epicotyle and start preparing food through the photosynthesis. So normally young leaves जो after germination वो निकलेगा, वो कहाँ पे रहेगा, एपिकोटाइल जो है एपिकोटाइल का टिप में, मतलब एपेक्स ऑफ एपिकोटाइल वहाँ पे, मतलब यंग लीव्स जो नॉर्मली बाहर निकल के आएगा वो रहता है, अनफोल्ड ही सब, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. फाइनली द कॉटिलेडन्स विदर अवे एंड फॉल ऑफ. नॉर्मली फर्स्ट लीव्स निकलने के बाद कॉटिलेडन्स जो है अपने आप गिर जाता है. नेक्स्ट, हाइपोजियल जर्मिनेशन. इन हाइपोजियल जर्मिनेशन the cotyledons remain below the soil and the plumule comes out to form the new leaves. So in case of hypogeal germination में क्या हो रहा है, cotyledons नॉर्मली मिट्टी के अंदर ही रह जाता है और प्लीम्यूल्स मिट्टी को भेद करके ऊपर आता है to form new leaves. This type of germination is mostly seen in the monocot seeds such as wheat, rice, maize, and in some dicot plants such as a mango, gram and pea. Germination in a maize seed. The seed absorb water and swollen up. So look at the figure here. Normally seed जो होता है मिट्टी के मतलब अंदर पानी एब्जॉर्ब करने के बाद उसका कॉटिलेडन जो है फूल जाता है. द रेडिकल ग्रोज डाउनवर्ड. रेडिकल निकल के नॉर्मली मिट्टी के अंदर जा रहा है टू फॉर्म द रूट सिस्टम. नेक्स्ट, द एपिकोटाइल elongates and takes the plumule out the soil.
एपिकोटाइल जो है वो खुद को ब्लास्ट करने के बाद प्लीम्यूल को मिट्टी के ऊपर ढकेल दे रहा है, जहां पे प्लीम्यूल मिट्टी के ऊपर आने के बाद फास्ट लीव्स फॉर्म कर रहा है. द कोटिलेडन्स एब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द एंडोस्पर्म which is used for the growth of plant. So in case of hypogeal germination, cotyledons normally endosperm से food absorb करता है which is used for the growth of plant. Normally मिट्टी के ऊपर जो फास्ट लीव्स फॉर्म कर रहा है उसको प्रोवाइड करने के लिए ये कॉटिलिडन्स एंडोस्पर्म के अंदर से फूड कलेक्ट करके उसको सप्लाई दे रहा है. Soon more leaves emerge and start preparing food. मतलब बहुत जल्दी नया मतलब लीव्स निकलने के बाद फूड प्रिपेयरिंग चालू कर देता है. सो हियर इज अ डिफरेंस बिटवीन एपिजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन. फर्स्ट कोटिलेडन्स pushed up through the soil. In case of एपिजियल जर्मिनेशन कोटिलेडन्स मिट्टी के ऊपर बाहर आता है. कोटिलेडन्स become photosynthetic and form the fast leaves also called seedlings. So कोटिलेडन बाहर आने के बाद मतलब मिट्टी के ऊपर आने के बाद एज अ लीफ ट्रीट करता है और नया पेड़ के लिए मतलब नया सैपलिंग्स के लिए अपना मतलब एज अ लीफ खाना भी बनाता है. दैट्स वाई कोटिलेडन इज ऑल्सो नोन एज सीड लीव्स. बट इन केस ऑफ हाइपोजियल जर्मिनेशन रिमेन इनसाइड द सॉइल, मिट्टी के अंदर ही रह जाता है. दे प्रोवाइड फूड फॉर द ग्रोइंग सीड एंड देन श्रिवल. मतलब नॉर्मली इंडोस्पर्म से खाना कलेक्ट करने के बाद ये नया जब लीव्स निकल के आता है उसको सप्लाई देता है और उसके बाद ऐसे अपने आप गिर जाता है. नेक्स्ट प्लीम्यूल. प्लीम्यूल फॉर्म्स द सेकेंड लीव्स और इन केस ऑफ हाइपोजियल जर्मिनेशन प्लीम्यूल फॉर्म्स द फर्स्ट लीव्स. Occurrence in dicot plants such as the beans. In case of hypogeal germination, mostly in monocot plants such as the wheat, rice, and some dicot plants such as gram and pea. So, student, you will learn the difference between एपिजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन. और सिर्फ एक बात ध्यान रखना, एपिजियल जर्मिनेशन में कॉटिलेडन्स मिट्टी के ऊपर आता है और एज अ लीफ ट्रीट करता है मतलब फास्ट लीव फॉर्म करता है. बट इन केस ऑफ हाइपोजियल जर्मिनेशन कॉटिलेडन मिट्टी के अंदर ही रह जाता है और एंडोस्पर्म मतलब इलॉन्गेटेड होने के बाद उसको ढकेल देता है और प्लीम्यूल बाहर आने के बाद फास्ट लीव्स फॉर्म करता है. और कहाँ पे दिखाई देता है? डाइकॉट प्लांट्स पे, यहाँ पे मोनोकॉट प्लांट्स में दिखाई देता है स्पेशली. और सम डाइकॉट प्लांट्स भी फॉलो करता है हाइपोजियल जर्मिनेशन. तो स्टूडेंट, ये पूरा डिटेल्स में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिर्फ जो जो पॉइंट हम जस्ट बार बार रिवाइज कर रहे हैं सिर्फ वही चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ना. सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई डिस्कस इन दिस वीडियो. सो नेक्स्ट दिन आई विल डिस्कस द एक्सरसाइज. और एक बात कहना है, कोई एक स्टूडेंट हमको रिक्वेस्ट किए कि मिस वीडियो हिंदी में बनाइए, आई मीन हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डेलिबरेटली स्पीक इन हिंदी बिकॉज इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड or restricted from the school because we have to make the video in English. That's why you will try to understand what actually I want to say. So for today, up to this portion.